ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا گیا۔ 78ویں لہر کے دوران خطے میں امریکی اہداف اور اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایلات، دیمونا اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈ میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان کارروائیوں میں اماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے، جبکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا اب تک پاسداران انقلاب کی زیادہ تر جنگی یونٹس اور بسیج فورسز کو مکمل طور پر میدان میں نہیں اتارا گیا، تاہم ضرورت پڑنے پر انہیں بھی شامل کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی فوج نے امریکی صدر کو پیغام دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بہت بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی فوجی اہلکار نے کہا صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنا سر ہٹائیں اور اپنی آنکھوں کو آسمان، اسٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر مرکوز کریں۔ ایران بڑا سرپرائز دینے والا۔ ایران ڈیل کے لیے بےتاب۔ تہران میں جو ہو رہا ہے اسے ریجیم چینج کہا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی، بجلی گھروں پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی، امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران افزودہ یورینیم میرے حوالے کر دے، کبھی دوبارہ اسے حاصل نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا مشتبہ خامنہئی کو نشانہ بنایا جائے۔ مجھے نہیں معلوم مشتبہ خامنہئی زندہ ہے یا نہیں۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، اگر معاہدہ ہوا تو ہم خود افزودہ یورینیم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل سے بات ہو گئی، وہ تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ اگر معاہدہ ہوا یہ ایران اور خطے کے لیے شاندار ہوگا۔ ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتے، صرف مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ ایٹمی ہتھیار ہوتے تو وہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر لیتا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران کو اسے جہازوں سے بھرا تیل فروخت کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے طیارے حملہ نہ کرتے تو ایران ایٹم بم بنا چکا ہوتا۔ میں خامنہئی کے بیٹے کو رہنما نہیں مانتا۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول غالباً میرے اور ایران کے پاس ہوگا۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں اور ایرانی عوام کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی۔ ایرانی صدر نے بھی پرتپاک انداز میں جواب دیتے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے بطور ہمسایہ برادر ملک جاری کشیدگی کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے زخمیوں اور متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی، جبکہ خلیجی ممالک کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف فوری واپسی پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے اور امت مسلمہ کے درمیان اتحادی اور یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی قیادت کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ خبروں نے تصدیق کی ہے امریکہ ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے لیے پاکستان ترکیہ مؤثر متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ الجزیرہ، روئٹرز دیگر عالمی اداروں کے مطابق یہ ممالک مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ معاہدے کے لیے فریقین کے درمیان رابطے کرا رہے ہیں۔ حسین اندرابی نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر فریقین رضامند ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا امریکہ ایران کے درمیان حالیہ دنوں میں مذاکرات ہوئے، اہم نکات پر اتفاق ہوا، تاہم ایرانی قیادت نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا۔ سفارتی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں رواں ہفتے امریکی ایرانی حکام کے درمیان اہم ملاقات ہو سکتی ہے، تاہم کئی اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ امریکہ کو ممکنہ معاہدے کے لیے ایران کے خلاف کارروائی کی جارحیت تسلیم کرنا، نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا، جبکہ ایران نے کسی بھی امریکی اقدام کی صورت میں آبنائے ہرمز بند کرنے کا حق محفوظ رکھنے کا عندیہ دیا۔ پاکستان خود کو ایک اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ عسکری سفارتی سطح پر بیک چینل رابطے جاری ہیں۔ ان کوشش کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور کسی ممکنہ تصفیے تک پہنچنا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور آبنائے ہرمز سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جنوبی کورین وزیر خارجہ نے خطے میں کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے اپیل کی ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی گزرگاہ کو مکمل فعال کرے، آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔
सलामती कौंसिल में यूक्रेन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा ऐसे इक़दामात की हिमायत करेगा जो इख्तिलाफ़ात के खात्मे और अमन के ज़रिए तनाज़ात के हल को यकीनी बनाए, चाहे वो आलमी सतह पर हो या यूक्रेन में। उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया वो एहतियात का मुज़ाहरा करें, कशीदगी में कमी लाएं, मुज़ाकरात सफारतकारी के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें। आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। ईरान ने जारी जंग के खात्मे के लिए 6 अहम स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी हैं, जिन्हें एक नए कानूनी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा करार दिया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुख्तलिफ इलाकाई ममालिक और सालिसों ने ईरान को जंग बंदी के हवाले से तजावीज़ दी हैं, जिसके जवाब में ईरान ने अपने शराइत सामने रख दी हैं। अहलकार के मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि जंग दोबारा शुरू ना होने की वाज़ेह और काबिल अमल जमानत दी जाए। दूसरी शर्त खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश है, जबकि तीसरी शर्त जारह कुव्वतों को पीछे हटाने और ईरान को जंगी नुकसानात का हर्जाना अदा करने का मुतालबा शामिल है। चौथी शर्त के तहत ईरान ने मुतालबा किया है कि तमाम इलाकाई महाजों पर जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। पांचवीं शर्त आबनाए हुर्मस के लिए एक नया कानूनी निज़ाम नाफिज करना है, जबकि छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन अनासर को मुल्क बदर कर। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। आर्थर के इलाके में वाक़े वेलेरो ऑयल रिफाइनरी में ये वाक़या पेश आया। इन शाहिदीन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है। धमाके के बाद आग के शोले और बादल आसमानों की तरफ बुलंद हो रहे हैं, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह एक सनती हीटर का धमाका हो सकता है, ताहम वाक़े की मुकम्मल वजूहात जानने की तहकीकात की जा रही हैं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जब आलमी सतह पर तवानाई की तनसीबात पहले ही हसास सूरत हाल का शिकार हैं, जिसके बायस इस किस्म के हादसात पर आलमी तवज्जो मरकूज। दूसरी जानिब आपको बताएं, वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ट्रंप इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए वक्त बढ़ा रहे हैं। ईरान की वजारत खारजा ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी ने तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने बयान जारी करते हुए कहा, जंग जारी है, ये दुश्मन की एक और शिकस्त है। सदर ट्रंप और अमरीका एक बार फिर नाकाम हो गए। में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 66 अफराद हलाक। कोलंबियन वजीर दिफा ने बताया, एयरफोर्स का C-130 तैयारा जनूबी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे ने रोकी सरहद के करीब पोर्टो लीगो से उड़ान भरी। फायर फाइटर ने तैयारे की उड़ान भरते वक्त रनवे के अख्ताम के करीब किसी चीज़ से टकराने का खदशा जाहिर किया। तैयारा जब तेज़ी से नीचे गिर रहा था, इसके एक पर दरख्त से टकरा गया। गिरने के बाद तैयारे में आग लगी, धमाका हुआ। कोलंबियन हुकाम के मुताबिक तैयारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। दीगर अफराद की तलाश जारी। हादसे की वजूहात के लिए तहकीकात शुरू। कोलंबिया के सदर गुस्टावो पेट्रो ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मिलिट्री फ्लीट को जदीद बनाने के प्लान में मजीद ताख़ीर नहीं होने दूंगा। कि कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 240 हो गई, जबकि ईद उल फितर के 3 दिनों में 16 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में रवा साल के दौरान अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 246 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसा का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में 178 मर्द, 33 खवातीन और 26 बच्चे और 9 बच्चे शामिल हैं। जबकि ट्रैफिक हादसा में 2500 से ज्यादा अफराद जो हैं, जिनमें खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं, ये मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जख्मी हुए हैं। 83 रोज के दौरान जो ट्रैवलर्स की टक्कर से है वो 37 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मजदा की टक्कर SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। माली साल 2026 के पहले 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे और डिविडेंड 1.73 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 10.52% ज़्यादा हैं। फरवरी 2026 में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से 48.7 मिलियन डॉलर की अदायगी रिकॉर्ड, जो मुस्तहकम कारोबारी सरगर्मियों की अक्कासी करती है। पावर, मालियाती, फूड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट शोबों में बिलतरतीब 421.85, 374.09, 142.42, 132.3 और 91.29 मिलियन डॉलर की अदायगी हुई। मुशीर खजाना खुरम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाले बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़कर 75% हो गया, जो 2 साल पहले तकरीबन 60% था।
वक्त हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम तपे दक के मौके पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर तपे दक जैसे काबिल इलाज और काबिल बचाव मर्ज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा करता है। उन्होंने कहा, मौजूदा दौर में भी तपे दक मुतादिदी अमराज में सरे फहरिस्त है और पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लिए एक बड़ा सेहत, समाजी और मुआशी चैलेंज है। ये बीमारी ख़ास तौर पर एक कमज़ोर तबक़ात को मुतासर करती है और ग़ुरबत, ग़िज़ाई क़िल्लत और अदम मुसावात जैसे मसाइल को मज़ीद बढ़ाती है। वज़ीर आज़म के मुताबिक हुकूमत ने तबे तक के ख़ात्मे को सेहत आमा की अहम तरजीह करार दिया और एक जामे हिकमत अमली के तहत बरवक्त तशख़ीस, मयारी इलाज तक रसाई, बीमारी की रोकथाम और मरीज़ों की निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जदीद तशख़ीसी सहूलियात को वसअत दी जा रही है, लेबॉर्ट्री नेटवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर आलम मरियम नवाज ने टीबी के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम देते हुए कहा, सेहतमंद पंजाब के लिए टीबी के खिलाफ जंग जीतना नागुज़ीर है। टीबी के खात्मे के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़म का यादा, इलाज और इसके बारे में अवाम में आगाही पैदा करने की अहमियत पर जोर, सूबे में टीबी के मर्ज़ के मुकम्मल खात्मे के लिए पुख्ता अज़म, बरवक्त तशख़ीस, मौसर इलाज के ज़रिए टीबी के मरीज़ों की जानें बचाई जा सकती हैं। मरियम नवाज ने कहा, टीबी, हेपेटाइटिस, अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए घर की दहलीज़ पर मुफ्त अद्वियात पहुँचाने का प्रोग्राम जारी है। पंजाब में टीबी के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात फराहम। खबर देंगे, बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान खुद को अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के खात्मे के लिए एक अहम सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि जनरल आसिम मुनीर ने इतवार के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत की। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी हुकाम और के पस पर्दा राबते करवाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी और ईरानी क़यादत के दरमियान ये राबता ऐसे वक्त में हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बिजली घरों को निशाना बनाने की अपनी धमकी मौखर करने का ऐलान किया और कहा कि तेहरान की बहुत अच्छी और मस्बत साथ बातचीत हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों और ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में जो इसके बाद तेल की कीमतों में भी कमी देखी गई है, दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक है या नहीं। व्हाइट हाउस ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देने से गुरेज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईरान मुखालिफ इसराइल के साथ गठजोड़ की पॉलिसी भारतीय मईशत, अवामी मफादात पर मनफी असर डाल रही है। अमरीकी जरीदे द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खलीज में जारी जंग ने भारत को माली बहरान से दो चार कर दिया। तवील मुद्दती खलल के बाइस मुल्की वसाइल पर शदीद दबाव का इम्कान, भारत में घरेलू गैस की किल्लत सारिफीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। बरामदात और खलीजी ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र शदीद खतरे में। एक माह के दौरान भारत की स्टॉक मार्केट तकरीबन 10% तक गिर चुकी। आलमी सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सैचेस ने आइंदा साल भारत को ज़्यादा महंगाई, कमज़ोर करेंसी का सामना करने की वार्निंग दी। मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी और नेतन्याहू से नजरियाती वाबस्तगी अवामी मफाद के खिलाफ है, जिसकी वजह से भारतीय अवाम मईशत, मुसलसल गिरावट, तेल और गैस की किल्लत और बढ़ते बोझ का सामना कर रहे हैं। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द गिरोह और मुजरिमाना नेटवर्क्स खित्ते के ममालिक के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। नाअहल तालिबान रजीम की नाकामी ने अफगान अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है और मुल्क में सियासी और माशी ढांचे की तबाही ने अदम इस्तेहकाम में इजाफा कर दिया है। अमरीकी जरीदे समाल वॉर्स जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मफलूद सियासत, नज़रियाती सख्ती और आलमी तन्हाई ऐसे खतरात पैदा कर रही है जो सरहदों से बाहर भी असरअंदाज हो रहे हैं। तालिबान रजीम में साख्ती कमज़ोरियाँ, नाकाम इदारे, मुआशी सकड़ाव और वसी पैमाने पर समाजी अखराज ने मुल्क में शिद्दत पसंदी और अदम इस्तेहकाम को बढ़ा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जारी करदा वीडियो में न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे और मार्क चैंपियन ने एयरपोर्ट पहुंचकर पैगाम दिया। उर्दू ज़बान में वीडियो में दोनों खिलाड़ियों को एक साथ देखा जा सकता है, जबकि मार्क चैंपियन कहते हैं, हम आ गए हैं शेरोज़। मुल्तान सुल्तान्स के ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड स्टीव स्मिथ भी लाहौर पहुँच गए। तबरेज़ शम्सी, जोश फिलिप, पीटर सेडल और कोच टिम पेन समेत मुल्तान सुल्तान्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबे भर की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए तमाम अफसरान को आइंदा 7 रोज़ तक फील्ड में मौजूद रहने की
ہدایت کی۔ انہوں نے کہا محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کی گئی ہے، لہٰذا پیشگی اقدامات ناگزیر ہیں۔ چیف سیکریٹری نے بھی پی ڈی ایم اے کو فوری ایڈوائزری جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی اداروں کو مکمل طور پر متحرک ہونے اور فیلڈ میں نکلنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں نکاسی آب کے نظام کو مؤثر بنانے پر زور دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ تمام ضروری مشینری کی دستیابی اور فعالیت کو یقینی بنایا جائے۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہنگامی اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ مزید بارش اور تیز ہواؤں کے پیش نظر خطرناک بل بورڈز کے خلاف فوری کارروائی کا بھی حکم دیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 30 مارچ کے دوران تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر کراچی حیدرآباد میں 25, 26, 28, 29 مارچ کو بارش ہو سکتی ہے۔ سکر دادو کشمور میں بھی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان، اسلام آباد اور مختلف شہروں میں بھی بارش متوقع۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی